किया वो विश्राम में प्रवेश किया है। Believing brings rest to your soul, and a restful soul enjoys life. विश्वास करना हमारे प्राणों में विश्राम लाता है और ऐसे प्राण जो विश्राम में हैं वो आनंदमय जीवन जीते हैं। Amen. Amen. Romans 10:10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। And when it says heart, many people think this boop, 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 boop. No, this organ doesn't, it cannot think, it pumps blood. It's not biological heart. This word heart in Bible comes from the Greek word cardia, that means the core of who you are, the sin. When God penetrates your skin, your bones, your muscles, your tissues, your cells, and goes deeper, 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 there is this core of who you are, that's your heart. और कई बार जब हृदय शब्द बोला जाता है तो कई लोग इस शारीरिक जो शरीर में हृदय है, दिल है, उसके बारे में सोचते हैं जो रक्त का भाव नियंत्रण करता है, लेकिन वो नहीं है। अगर हम हृदय की सच में बात करें या मन की सच में बात करें, वो हमारे दिल का अंदरूनी भाग है, हमारे अस्तित्व का अंदरूनी भाग है, जो अपने शरीर, मांस, हड्डी, मांसपेशियों, उसके अंदर जाकर एक मन है, अंदरूनी मन है, जिसके बारे में बात होती है। So when Bible says heart, that means you cannot believe through at the surface level. और बाइबल में जब हृदय के बारे में बात होती है, मन के बारे में बात होती है, इसका मतलब ये है कि आप सतह पर विश्वास नहीं कर सकते। Many people believe at the surface level. कई लोग बस ऊपरी मानना करते हैं, ऊपरी तरीके से। Do you believe God is good? Yes. क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर भला है? और हम नाचने लगते हैं, परमेश्वर भला है। God is good. Do you believe God is good? Yes, Pastor, God is good. अच्छा है, अच्छा है। Are they saying it from here or are they saying it from here? Majority from here. Because when anything goes wrong, it's like, what did God do for me? कहाँ है प्रभु? क्या किया उसने मेरे साथ? मैं चर्च किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. What happened? The core, the belief that was in the core has started to come out of their mouth. जब सब खुश होते हैं तो सब अच्छा अच्छा गाते हैं और कहते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही तकलीफ आती है, उनके जो अंदरूनी सोच विचार की प्रणाली है, उससे आवाज निकलती है कि व्हाट डिड गॉड डू फॉर मी? परमेश्वर ने क्या किया मेरे साथ? Hear this. ध्यान से सुने। You only get to partake of the things in the Bible that you believe, not what is written, what you believe. आप बाइबल में लिखी हुई बातों का फल तभी पा सकते हैं जब आप उन पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो लिखा है इसलिए आपके जीवन में हो रहा है। Now, you know the Bible separates the word, and again, I have done a faith series, you can go, that's the first part. There is a difference between believing and faith. और अगर आप विश्वास की श्रृंखला फेथ सीरीज में जाएंगे तो आप देखेंगे मानने में और विश्वास करने में फर्क है। बिलीविंग मानना होता है और फेथ विश्वास। How many people here, you did the DNA test of your father and then you said, पहले मैं देखूंगा, तब मैं पापा बोलूंगा? How many people did that? कितने लोगों ने अपने माँ बाप का DNA टेस्ट कराया और उसके बाद विश्वास किया that I will first check if the DNA matches, then I know that he's my parent. From childhood, we are wired to believe. हम अपने पैदा होने से ही विश्वास करने के लिए बनाए गए हैं। Are you guys with me? Believing comes from this Greek word pistis, P-I-S-T-I-S, which means to be absolutely convinced that this is the truth without needing an evidence. मानना जो शब्द है वो उसका मूल शब्द है पिस्टिस, यूनानी शब्द पिस्टिस से आता है कि मुझे इस बात को जानने के लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। That means you are so convinced it becomes your reality. कि मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि वही वास्तविकता है मेरे लिए। You don't need a DNA test to know that your father is your father. हमें DNA टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मेरा
पिता जो है वही मेरा पिता है। You don't need a DNA test to show you that God is good. You know that you know that you know that you know. आपको किसी प्रकार की परीक्षा या टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि परमेश्वर भला है। आप बस अपने अंदरूनी मन में जानते हैं और जानते हैं कि वो भला है। Do you know that Jesus never rebuked his disciples for doing wrong? He rebuked his disciples for unbelief. आप जानते हो यीशु ने कभी अपने चेलों को गलत करने पर नहीं डांटा, परंतु उनके गलत विश्वास पर डांटा उनको, या अविश्वास पर डांटा। Jesus knew the problem is unbelief. क्योंकि यीशु जानता था दिक्कत है अविश्वास में। Unbelief is the main reason that stops us to possess what belongs to us. अविश्वास करना ही मुख्य कारण है जो हमें रोकता है हमें उस बात को हासिल करने से जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Okay, hear this. In Luke 24, there is this incident where two disciples, now Jesus has crucified, he died, he's buried, and now two disciples are on the way to Emmaus, and they are talking about what all happened. लूका 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दो चेले इमानुस की तरफ जा रहे होते हैं और इससे पहले यीशु जो है क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर उसको दफना भी दिया गया Kings, था। can you come? Come. Okay, you both walk. And now what happens? Jesus joined the chat. और जब ये